اگر ہم اسلام کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو آبویسلی ہمیں پروفٹ محمد کا ذکر تو ہوتا ہی ہے، ابو بکر کا ذکر ہوتا ہے، اور بھی باقی واریئرس کا ذکر ہوتا ہی ہے۔ لیکن ہمیشہ جو ہسٹری ہے اسلام کی وہ بھی ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ وہ کتنی پاورفل ہے، اور اس میں جو یہ واریئرز ہیں ان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے پہلے خلیفاؤں نے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی کوئی بھی ہسٹری نہیں لکھی، کیونکہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ زیادہ تر صحابہ اب بھی زندہ تھے اور انہیں اسلام کی ساری ہسٹری کا پہلے سے پتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے صحابہ دنیا سے جانے لگے، مسلمانوں کی نئی جنریشن اسلام کی ہسٹری کو بدر، احد، خندق جیسی جنگوں کو بھولنے لگے، اور کچھ ینگ لوگ تو اسلام کے ہیروز جیسے خالد بن ولید بھولنے لگے، علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر رومن اور پرشین امپائر کے ہیروز ہرکیلیز اور رستم سے امپریس ہونے لگے۔ کیونکہ ان کی ہسٹری اب لکھی ہوئی اس تھی۔ ینگ جنریشن کو اسلام کے ہیروز کی یاد دلانے کے لیے پہلی بار مسلمانوں کے ایک بہت بڑے خلیفہ نے کام شروع کیا، جن کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بنتے اس زمانے کے ایک بہت بڑے اسکالر ابن شہاب الزہری کو اپنے پاس بلایا اور انہیں حکم دیا کہ میری اس خلافت میں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہر جگہ جا کر لیکچرز دو۔ اب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں دنیا کے آخری کچھ ہی صحابی زندہ تھے، تو ابن شہاب نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سیکھا اور اسے آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھانے لگے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے مسلمان ہمارے نالج پاس آن کرنی پڑتی ہے، بھول جائیں۔ اور ان کے انہی میں سے دو اسٹوڈنٹس کو آج پوری دنیا جانتی ہے، ابن اسحاق اور امام مالک۔ یہ کون ہے؟ جس کے بعد ابن شہاب نے اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی کتاب لکھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ کتاب پوری کی، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو شہید کر دیا گیا۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے شہید ہوتے ہی اس کے صرف 30 سال بعد پوری بنو امیہ کی حکومت ٹوٹ گئی، اور بنو امیہ کے ساتھ ساتھ ابن شہاب کی لکھی ہوئی اسلام کی تاریخ کی پہلی کتاب بھی دنیا سے غائب ہو گئی۔ اب بنو امیہ کی خلافت تو دنیا سے ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد دنیا میں ایک نئی خلافت شروع ہوئی، عباسی خلافت۔ اب عباسی خلافت میں بھی بنو امیہ کی طرح بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن ان میں ایک بات ایسی تھی جسے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ عباسی علم، نالج سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک عباسی بادشاہ نے رومن امپائر سے ایک بہت بڑی جنگ صرف افلاطون کی ایک کتاب کے بدلے میں ختم کر دی تھی۔ عباسی خلافت کے بادشاہ منصور نے بنو امیہ کے کیپٹل کو ختم کر کے دنیا میں مسلمانوں کا ایک نیا کیپٹل بغداد۔ یہ تو سنا ہوا ہے، اس ٹائم میں گولڈن ایج آف مسلمز ہوا کرتا تھا، اور اس کے اندر اس نے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنائی، جسے آگے جا کر بیت الحکمہ، ہاؤس آف وزڈم کا نام ملا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ یہ لائبریری بناتے عباسی بادشاہ منصور نے اسی ابن شہاب الزہری کے اسٹوڈنٹ ابن اسحاق کو اپنے پاس بلایا اور اسے حکم دیا کہ جاؤ اور اسلام کی ہسٹری پر دوبارہ ایک کتاب لکھو، لیکن کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک اس میں پوری دنیا کی ہسٹری ہونی چاہیے۔ ابن اسحاق نے بالکل ایسا ہی کیا، اور منصور کے آرڈرز پر مسلمانوں کی پہلی کمپلیٹ تاریخ لکھی۔ یہ حدیث کی کتاب نہیں بلکہ ایک ہسٹری کی کتاب تھی، لیکن آج ابن اسحاق کی یہ امپورٹنٹ بک بھی دنیا سے غائب ہو چکی ہے۔ لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ آخر کیوں یہ ساری کتابیں دنیا سے غائب ہو رہی تھی؟ کیونکہ اب تک مسلمانوں کو پیپر کی ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں تھا، اور یہ ساری کتابیں پرانے زمانے کے ایک بہت ہی مہنگے مٹیریل پاپائرس پر لکھی جاتی تھی، جسے مسلمان ان چھوٹے چھوٹے پتوں کو ملا کر بناتے تھے، جو پیپر کے مقابلے میں ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ پیپر کی ٹیکنالوجی اس زمانے میں دنیا کے صرف ایک ہی ملک میں تھی، مسلمانوں کی خلافت سے بہت دور، چائنا۔ اور پیپر کی اس ٹیکنالوجی کو چائنا کے بادشاہوں نے پوری دنیا سے چھپا کر رکھا تھا، لیکن بہت جلد یہ سب بدلنے والا تھا، کیونکہ عباسی خلافت کے آتے ہی کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں
और चाइनीज एम्पायर की जंग छिड़ सबसे गई। बड़ी जंग, जंग में फिर मिला होगा। जिसमें मुसलमानों की फौज ने आसानी से पूरी चाइनीज फौज को वाह। क्रश कर दिया और हजारों चाइनीज सोल्जर्स को अपना कैदी बना लिया। अब कहा जाता है इन्हीं चाइनीज कैदियों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी का वही। अच्छी तरह पता था, और यहाँ से मुसलमान पहली बार इन चाइनीज कैदियों से पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी सीखने लगे। लेकिन पहले मुसलमानों को इसकी इम्पोर्टेंस का वही। इतना पता नहीं था। लेकिन फिर आखिर अब्बासी खिलाफत का सबसे बड़ा बादशाह आया जिसका नाम था हारून रशीद। हारून रशीद। और हारून रशीद को पेपर की टेक्नोलॉजी की ताकत का अच्छी तरह पता था, इसीलिए उसने बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी पेपर बनाने की वाह यार। फैक्ट्री बनाई, ओह, जिसके साथ ही दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ जिसे आज तक लोग याद करते हैं, इस्लामिक गोल्डन एज। हारून रशीद ने हाउस ऑफ विजडम के बिल्कुल पास दुनिया की सबसे बड़ी पेपर की फैक्ट्री बनाई, जहां पानी की मशीन से डेली हजारों पेपर्स बनाए जाते थे। क्या ये दुनिया बात की सबसे बड़ी पेपर फैक्ट्री थी, और ये इतनी बड़ी बात थी कि यूरोप में पहली पेपर की फैक्ट्री मुसलमानों से 300 साल बाद 300 बनाई साल गई। बाद। अब इसी ओह। पेपर की टेक्नोलॉजी की वजह से किताबें गायब खत्म होने हो की गई थी टेंशन भाई। खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जो भी किताब हाउस ऑफ विजडम में लिखी जाती थी उसे इसी पेपर मार्केट में कॉपी कर करके पूरी दुनिया में वही। फैलाया जाता था। इसीलिए इस्लामिक गोल्डन एज में हर तरफ स्कॉलर्स हजारों किताबें लिखने लगे, जिनमें से बहुत सारे आज तक दुनिया में वाह मौजूद यार। हैं। ओह। और कहा जाता है उस जमाने में स्कॉलर्स की इतनी इज्जत होती थी जितनी आज रोनाल्डो या रोनाल्डो मेसी या की मेसी। Cristiano Ronaldo और स्कॉलर की breaks तो it. वैसे भी इतनी इज्जत होनी ही Messi चाहिए। again is superhuman. इसी गोल्डन एज में सही बुखारी सही और बुखारी। सही मुस्लिम जैसी अहादीस की 6 बड़ी किताबें लिखी गई। लेकिन अब भी एक क्या? बहुत बड़ा मसला ये था कि इब्ने इसहाक की किताब गायब होने की वजह से इस्लाम की हिस्ट्री पर कंप्लीट कोई भी किताब नहीं थी। तो अब ये देखकर उसी इब्ने इसहाक के स्टूडेंट इब्ने हिशाम ने दोबारा एक बार फिर इस्लाम की हिस्ट्री पर किताब लिखी, और पेपर की टेक्नोलॉजी की वजह से इब्ने हिशाम की ये किताब आज वाह तक हमारे यार। पास पड़ी हुई है। ओह वाह। बल्कि इस किताब का नया वर्जन आपको आसानी इब्ने से हिशाम कहीं से भी की मिल किताब, इब्ने जाएगा। हिशाम। ये इस्लाम की हिस्ट्री की सबसे हिशाम पुरानी की किताब है। किताब। अब इब्ने हिशाम के बाद हर तरफ इस्लाम की हिस्ट्री पर किताबें लिखी जाने लगी, जिसमें इस्लाम की नेक्स्ट हिस्ट्री की किताब अल वाकिदी ने लिखी। अल वाकदी। ये है वाकदी की किताब। लेकिन आज बहुत सारे स्कॉलर्स वाकदी की कुछ बातों को सही नहीं समझते, जिसके बाद वाकदी के स्टूडेंट ने भी एक किताब लिखी, तबकात इब्ने साद, जिसमें उसने सारे सहाबा की स्टोरीज लिखी। और आखिर इसी दौर में एक ऐसी किताब लिखी गई कि अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री का थोड़ा भी पता है तो इस किताब का नाम आपने जरूर सुना होगा, कौन सी? और इस किताब का नाम है तारीख सारी किताबें अत-तबरी। नहीं हमने तो किसी- तबरी। ये है तारीख अत-तबरी, जो इस्लामिक गोल्डन एज के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, और बगदाद के एक स्कूल में 10 दीनार की सैलरी पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। वाह। लेकिन वाह आहिस्ता आहिस्ता यार। जब लोगों को इमाम तबरी की इंटेलिजेंस का पता चला, कहा जाता है एक बार उनके स्कूल ने खुश होकर उनके सामने गोल्ड दीनार्स का एक खजाना रखा। फिर लेकिन इमाम तबरी ने उससे सिर्फ अपने 10 दीनार उठाए और कहा अच्छा। यही मेरी तनख्वाह है, अरे, इससे ज्यादा मैं कैसे है एक वो? पैसा भी नहीं लूंगा। वही। तबरी ने अपनी इस किताब में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्बासी खिलाफत के सारे हालात लिखे हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे स्कॉलर्स थे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ उन्हें डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने इस्लाम की हिस्ट्री पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। तारीख तबरी अब्बासी खिलाफत की आखिरी बड़ी किताब थी, क्योंकि इसके बाद अब्बासी खिलाफत आहिस्ता आहिस्ता अच्छा। कमजोर होने लगी। आखिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान इतने कमजोर हो गए कि इसका सबसे बड़ा फायदा यूरोप के पोप ने उठाया, और यूरोप के क्रिश्चियंस को जमा करके मुसलमानों के फलस्तीन पर हमला कर दिया और सही जेरूसलम गलत पर बात है। कब्जा कर लिया। लेकिन फलस्तीन खो देने के बाद भी बिल्कुल आज की तरह मुसलमान लीडर्स को कोई परवाह नहीं थी। क्यों? तब तो फलस्तीन एक दोबारा वही। फतह करने का ख्वाब मुसलमान बादशाहों से ज्यादा उस जमाने के स्कॉलर्स के दिलों में था, जिसमें सबसे बड़े स्कॉलर का नाम था इमाम इब्ने अच्छा। अस्साकिर, जो इतने बड़े स्कॉलर थे कि उनकी सिर्फ एक किताब के 70 वॉल्यूम्स हैं। इमाम इब्ने वाह। अस्साकिर दमिश्क के स्टूडेंट्स को इस्लाम की हिस्ट्री सिखाया करते थे, और उन्हें बताते रहते थे कि एक दिन मुसलमान
फलस्तीन दोबारा जरूर फतह करेंगे। इमाम इब्न असाकिर के इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक ने आगे जाकर फलस्तीन फतह भी किया, जिसका नाम था खालिद। सलाहुद्दीन और अय्यूबी, सलाहुद्दीन अय्यूबी जो 2 लाख की फौज लेकर फलस्तीन को दोबारा फतह करने के लिए रवाना हुआ। बाय द वे, जब सलाहुद्दीन फलस्तीन की तरफ जा रहे थे, उसी दौर के बगदाद में एक बहुत ही अजीब किताब लिखी गई, क्या? जिसका नाम था फज़ाइल फज़ाइल यजीद। यजीद की कहानी। इस किताब में यजीद को इस्लाम के एक बहुत बड़े हीरो की तरह ओह। प्रेजेंट किया गया हीरो? था। और ऐसा यजीद तो दिखाया बेकार गया था। कि यजीद से ज्यादा है नेक ही नहीं, इंसान तो वही। कोई है ही नहीं। और ये किताब इतनी फेमस हुई कि कुछ मुसलमान वाकई में यजीद को इस्लाम भाई का साहब। हीरो मानने लगे। ओह। लेकिन जैसे ही इस किताब की खबर उस वक्त के सबसे बड़े सुन्नी आलिम इमाम इब्ने जोजी तक पहुंची, वो इस बात से डरने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर मुसलमान यजीद को इस्लाम का वही। हीरो मानने लगे। हाँ। जिसके बाद इमाम इब्ने जोजी ने यजीद की हकीकत दुनिया के सामने रखने के लिए अपनी एक बहुत बड़ी किताब लिखी और यजीद को हमेशा के लिए एक्सपोज कर दिया। अब जब यहाँ ये सब हो रहा था, वहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आखिर पूरे फलस्तीन को अरे। फतह कर लिया और मस्जिद अक्सा पर इस्लाम का क्या झंडा बात है। लहराया, वाओ। जिसकी वजह से आज तक सलाहुद्दीन को पूरी दुनिया याद करती है। Warrior Saladin conquered the Crusaders. अब सलाहुद्दीन की इस फौज में भी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, इमाम इब्ने असीर, जिन्होंने लड़ने के साथ साथ इस्लाम की हिस्ट्री पर एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी। और ये है उनकी किताब, जिसमें उन्होंने सलाहुद्दीन की जंगों के साथ साथ इंडिया पर हमला करने वाले पहले मुसलमान अच्छा। बादशाह की कहानी भी लिखी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी। ओह। मतलब इब्ने History असीर के लिखना दौर कितना में important मुसलमान था। फलस्तीन, इंडिया, हर तरफ सिर्फ जीत रहे थे। लेकिन इस किताब के बिल्कुल आखिर में मुसलमानों की असल तबाही का वक्त शुरू होता है। कैसे? और मुसलमानों को तबाह करने वाले बादशाह का नाम था चंगेज चंगेज खान। खान। चंगेज खान के बारे में कौन नहीं मंगोलियन। जानता। हाँ। सलाहुद्दीन अयूबी के कुछ ही अरसे बाद चंगेज खान मंगोलिया से मुसलमान इलाकों की तरफ बढ़ने लगा और एक एक करके हर मुसलमान सिटी को जलाने लगा। चंगेज और खान के ये हमें तो इलाके कोई फतह नहीं करते दिखता। वही। करते आखिर चंगेज खान का पोता हलाकू खान इस्लामिक गोल्डन एज के सेंटर बगदाद तक पहुंचा। अरे। कहा जाता है इस वक्त इस्लामिक गोल्डन एज इतनी खराब हो चुकी थी कि लोग साइंस और नॉलेज को छोड़कर एक दूसरे के साथ अजीब अजीब बातों पर बहस करते थे। मतलब जब हलाकू खान तेजी से बगदाद की तरफ बढ़ रहा था, बगदाद के अंदर मुसलमानों की ये बहस चल रही थी कि एक सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं। हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसी रोटी खाया करते थे, और ऑफ कोर्स शिया सुन्नी की आपस की बहस। अरे। और जब मुसलमान आपस में इन बहसों में तब- बिजी थे, हलाकू खान की फौज बगदाद में दाखिल हुई और शिया सुन्नी को देखे बगैर सबको मुसलमान समझकर सबकी वही। गर्दनें उड़ा दी। कहा जाता है हलाकू खान ने बगदाद में इतने मुसलमान मारे थे कि बगदाद के दरिया लालों का के कलर साथ। मुसलमानों के खून की वजह ओह। से कई दिनों तक बिल्कुल रेड था। My और आखिर God. सबको मारने के बाद हलाकू खान की फौज दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हाउस ऑफ विजडम के और उसको दरवाजे भी पर जला लाइब्रेरी दिया। मत जलाओ और उसे यार। आग लगाकर उसकी ओ सारी यार। किताबों को दरिया में फेंक दिया। और ये इतनी ज्यादा किताबें थी कि इन किताबों की इंक की वजह से अब बगदाद का दरिया रेड के Blue। बजाय कई दिनों तक ब्लैक कलर का Black हो हो गया। और फिर हलाकू खान ने बगदाद की सारी पेपर बनाने की फैक्ट्रियों को आग लगा दी कैसा आदमी था ये? Seriously। और इस तरह इस्लामिक गोल्डन खत्म हो गया एज भाई। खत्म हो गया और मुसलमानों की 400 साल की मेहनत बगदाद खत्म। के वही। दरिया में बह गई। और मुसलमान इतने कमजोर हुए कि मुसलमान स्कॉलर्स के पास भी लिखने के लिए यार। पेपर भी नहीं था, जिसकी वजह से मुसलमान पहली बार यूरोप से पेपर मंगवाने लगे, जिससे यूरोप में पेपर की प्रोडक्शन आसमान तक चली गई और ओले, पहली यहाँ बार से यूरोप यूरोप के की क्रिश्चियन कमाई शुरू। मुसलमानों से ज्यादा पेपर बनाने लगे। अब जब मंगोलों की तबाही के बाद पूरी मुसलमान दुनिया में एक मायूसी छाई हुई थी और साइंस और हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें बर्बाद हो चुकी थी, इसी दौर में कुरान की तफसीर और इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में सबसे बड़ी किताब लिखी गई, जिसका ऑलमोस्ट हर मुसलमान ने नाम जरूर सुना होगा। और इस किताब का नाम है तारीख इब्ने कसीर। इब्ने कसीर। इस किताब का असली नाम अल बिदाया व निहाया है, which means शुरू से लेकर आखिर तक, अंत। जिसमें उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक हर डिटेल लिखी है। इब्ने कसीर के बाद एक और भी बहुत बड़े मुसलमान साइंटिस्ट ने इस्लाम की हिस्ट्री पर किताब लिखी,
जिन्हें कुछ लोग मुसलमानों का आखिरी बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, ओह। जिनका नाम था अल्लामा अच्छा। इब्ने खल्दून। और ये है उनकी किताब। इस किताब की पहली जिल्द को आज तक हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, क्या बल्कि बात इब्ने है। खल्दून के नाम पर आज भी तुर्की में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है। वाह, आज कुछ स्कॉलर्स इब्ने खल्दून को मुसलमानों का आखिरी बड़ा वाह। स्कॉलर मानते हैं, क्योंकि मंगोलों की तबाही के बाद अब दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान पेपर नहीं, मुसलमान यूरोप नहीं से आ रहे बल्कि भाई। यूरोप के क्रिश्चियंस बना रहे थे। और जिस साल इब्ने खल्दून फौत हुए, उसी साल यूरोप में एक आदमी पैदा हुआ, गुटेनबर्ग, जिसने एक ऐसी मशीन इजाद की कि दुनिया प्रिंटिंग को हिला मशीन। कर रखती, प्रिंटिंग प्रेस, जिससे यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता उससे तो मिलियंस हर ऑफ चीज किताबें fast लिखी हो जाने गई। लगी। और ये प्रिंटिंग प्रेस इतना जबरदस्त मशीन था कि पहले जो आदमी दिन में 40 वो- पेजेस लिखा करता था, अब इस प्रिंटिंग प्रेस की मशीन की वजह से वो हर दिन 4000 पेजेस प्रिंट करने लगा, जिससे ऑफ कोर्स यूरोप आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों से आगे निकलने लगा। और अब इस प्रिंटिंग प्रेस के दौर में मुसलमानों की दुनिया में एक नई सुपर पावर बन चुकी थी, उस्मानिया सल्तनत। और उस्मानिया सल्तनत ने एक उस्मान। ऐसा फैसला किया जिसे आज तक उनका सबसे बड़ा ब्लंडर माना जाता है। उस्मानिया सल्तनत के बादशाह और स्कॉलर्स ने मिलकर एक बहुत ही अजीब ऐलान किया कि ये मशीन प्रिंटिंग प्रेस मुसलमानों के ओह, लिए क्यों? हराम है। हराम। और वो इसलिए क्योंकि कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि इल्म सिर्फ कलम से लिया जा सकता है, मशीनों से नहीं। अरे, कुछ ने कहा कि गलत ये कर तो दिया। एक क्रिश्चियन इन्वेंशन है, इसे तो हराम होना चाहिए। और कुछ स्कॉलर्स इस बात से डर रहे थे कि अगर हर मुसलमान के हाथ में किताब आ गई तो फिर हमारा क्या होगा। जो भी हो, अब एक तरफ यूरोप के पास 1000 प्रिंटिंग प्रेस थे और दूसरी तरफ मुसलमान दुनिया में 0। मतलब एक मुसलमान अब भी दिन में सिर्फ 40 पेजेस लिख सकता था, और इसके मुकाबले में यूरोप का एक क्रिश्चियन हर दिन बार में न्यू टेक्नोलॉजी को 4000 पसंद नहीं पेजेस करते। प्रिंट कर सकता था। तो ऑफ कोर्स यहाँ से मुसलमानों का डिक्लाइन शुरू हुआ और यूरोप ऊपर जाने लगा, और मुसलमान इल्म और नॉलेज को छोड़कर पीछे। ताजमहल जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगे, और यूरोप में यूनिवर्सिटीज बनने और लगी लाइब्रेरीज बनने लगी, जिसकी वजह से इब्ने खल्दून और अलबेरूनी की बजाय अब दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट यूरोप में पैदा होने लगे। हाँ। लियोनार्डो डा विंची, गैलीलियो। और ये न्यूटन। आज हम लोग अपनी साइंस में भी आखिर पढ़ते हैं। यूरोप के इस प्रिंटिंग प्रेस के 300 साल बाद उस्मानिया सल्तनत को रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, और 300 साल बाद मुसलमानों ने अपना पहला प्रिंटिंग 300 प्रेस साल साल लग गए गलती लेकिन अब मानने में। बहुत देर हो चुकी थी, और आज तक मुसलमान दोबारा यूरोप के सामने अपना सर नहीं उठा सके। हाँ। सब्सक्राइब। एक्चुअली बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। हम लोगों को इससे पता लगा कि कैसे जो बेसिकली इस्लाम है उसकी गोल्डन एज आई, वहाँ पे जो फर्स्ट लाइब्रेरी थी वर्ल्ड की, वो मतलब कि सबसे बड़ी वो मुस्लिम द्वारा ही बनाई गई है ना। और फिर उसमें हम लोगों को पता लगा कि कैसे जो चंगेज खान है उसने हमला कर दिया था मुस्लिम्स पर, और जो वो लाइब्रेरी थी वो जला दी थी, और जो उसकी बुक्स थी वो दरिया में फैला दी थी, और वो जो दरिया था उसका कलर ब्लैक हो गया था, और उन्होंने मुस्लिम्स को भी मार दिया था। तो लाइक, और फिर उसके बाद वो चीज़ें यूरोप में हुई, फिर प्रिंटिंग मशीन आई तो यूरोप में आई, लेकिन जो इस्लाम जो बेसिकली मुस्लिम्स उन्होंने उस चीज़ को हराम माना। तो लाइक बहुत चीज़ इसमें हम लोगों को कवर अप करी। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली जो स्कॉलर्स है और साइंटिस्ट है वो शायद पहले मुस्लिम्स होते रादर देन यूरोप में पैदा नहीं होके वो मुस्लिम्स होते, और शायद न्यूटन के बारे में भी हम लोग नहीं जान पाते कभी, है ना। और अभी तो फिलहाल ऐसा है कि आज के टाइम में चाहे न्यूटन हो, गैलीलियो हो, ये सारे साइंटिस्ट हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं और वो सारे यूरोप के ही है, और इसके पीछे क्या आज हम लोगों ने हिस्ट्री भी जान ली। वही इस्लामिक गोल्डन एज आने के बाद इतना ज़्यादा तहस नहस हो गया, और मेन चंगेज़ खान जो था उसने सारी लाइब्रेरियाँ जला दी, सब कुछ ख़राब कर दिया। मतलब आप बोलते हैं ना, इंसान को मार दो एक बात है, पर उसकी नॉलेज मार दो वहीं पे सब खत्म हो जाता है। तो आपका इस बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।